हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सीए कौशल जागेटिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट का 1.5 डे प्लानर बिफोर द एग्जामिनेशंस ऑफ दिसंबर 21। सो एक्चुअली ये सिर्फ 1.5 डे ऑडिट का प्लानर नहीं है, लेकिन वी विल डिस्कस के आज के ही दिन से, सो टुडे इज़ 21 ऑफ नवंबर, आज के दिन से आपको ऑडिट के एग्ज़ाम के दिन तक किस तरह से इस सब्जेक्ट को हैंडल करना है, किस तरह से इसे इफ़ेक्टिवली एंड रैदर आई वुड से स्मार्टली प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप एक गुड स्कोर इस सब्जेक्ट में ला सकें। एंड एट द सेम टाइम हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, how to prepare for those 3 hours when you will write in your examination hall. So all these things we are going to discuss. ऑडिट की अगर मेरी हिस्ट्री बताऊं तो सीए इंटर में मेरे 62 मार्क्स थे एंड सीए फाइनल में मेरे 46 मार्क्स थे. सो आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट स्कोर, बट देन टू आई फील के मेरी कुछ टिप्स आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती है. सो ये वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ. सो the first thing I would advise is, in audit many of the students, what they do is they study only 80 to 85% of the syllabus and completely leave the rest 15% of syllabus. According to me this is completely wrong. This is not advisable at all, क्योंकि आज का सिनेरियो ऐसा है कि आईसीआई किसी भी एक रैंडम टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट फील नहीं होता है उसे उठाएगा और उसमें से कोई 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकता है. सो इस टाइम पे ऐसा होता है कि वो 10 मार्क्स का अपने को बिल्कुल भी नहीं आता है और फॉर अस द पेपर इज़ ओनली ऑफ 85 to 90 मार्क्स. सो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. एबीसी कैटेगराइजेशन के सपोर्ट में पर्सनली मैं नहीं हूँ. ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू शुड फॉलो एबीसी एनालिसिस, बट नॉट फुल्ली यू शुड डू दैट. अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात मैं करता हूँ जिसमें से कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, सेबी एलओडीआर, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू. ये चैप्टर अभी के लिए कुछ अटैम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स है. ऑडिट ऑफ बैंक, पीएसयू, इंश्योरेंस और एनबीएफसी, इन 4 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म आते हैं, बट यू नेवर नो फ्रॉम विच 2 चैप्टर्स दे विल आस्क 2 क्वेश्चंस. So you need to do all 4 chapters in a block. You need to console them and you need to do them in a block. If you do any two and leave any two, then you are at a high risk because you never know out of these 4 chapters from which 2 chapters, 2 to 3 chapters, they will make questions. And at the same time, these chapters are also important from MCQ point of view. Then comes your audit of CFS. So these are some chapters which you should never skip. These are the chapters from which you can be, I can say 95% confirm that a question or even a 2 marks MCQ can come from these chapters. So these are, you can say, A category chapters, but I am not saying that you should leave the C category chapters like the difficult chapters. You should not leave them. What I usually prefer is, and what was my strategy and you can say my slogan during my CA inter and CA final theory subjects was, study easy topics from every chapter, leave the hard part from limited chapters. What I mean to say is, सपोज कीजिए कि ऑडिट का पेपर बहुत ही ईजी आता है. इन दैट ईजी पेपर यू शुड नो एवरीथिंग बिकॉज यू हैव स्टडीड द ईजी पार्ट फ्रॉम एवरी चैप्टर and you have left the hard part from some limited chapters. So I am not in the support of leaving a chapter in its entirety. What I say is, if you feel that this chapter is very difficult, I can't handle this. The same thing happened with me also in the chapters of bank and insurance audit. I found those chapters very difficult. So I find out a strategy. I referred only the questions from Pankaj Garg's sir's scanner and did nothing else. I never referred module for this chapter. I never referred any other material. I only did Pankaj Garg's sir's scanner for this 2 to 3 chapters and it really helped me out. So I haven't completely left those चैप्टर्स ऑन माई लक कि एग्ज़ाम में देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा. तो उस तरह की स्ट्रेटेजी एटलीस्ट सीए फाइनल में तो अपने को अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन विल
easy paper come, and even you will not be able to attempt the easy questions from the chapters which you have left. So one simple strategy which I used to follow and that has helped me in my CA inter and even in my CA final is study easy topics from every chapter and leave the hard part from the limited chapters in which you are not most comfortable. Okay, then I would say is, see, today is 21st of November, and those who will be appearing for first group, most probably they will be starting the financial reporting preparations from 29th to 30th of November. So you still have a gap of 8 to 9 days in which you will be referring any other subject. What I would advise is study audit for at least 2 hours. By doing this you will stay connected with the subject. On the exam day you will feel कि यार मैंने अभी कुछ पढ़ा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज what happens is 1.5 days के अंदर ऑडिट का कवरेज करना, it's extremely difficult, rather I would say it's impossible to cover 100% of the audit 1.5 days before the exam. सो एटलीस्ट 2 आवर्स आप अगर ऑडिट को देते हो आज से ही, फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टिल 29th और 30th ऑफ नवंबर, टिल द डे यू पिकअप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपरेशंस, तो उस दिन तक भी आप अगर रोज के 2 आवर्स देते हो तो समझ लो 8 दिन के आप 16 घंटे अगर ऑडिट को दे रहे हो, तो इन 16 घंटों में आपका 20 to 25% कोर्स कंप्लीट आराम से हो सकता है. And on the after giving the SFM examinations you will be a bit confident कि मैंने 20 to 25% कोर्स तो अभी अभी कंप्लीट किया है, so I can keep it for the last moment to study in just 3 to 4 hours on the morning of the examination day, and you can focus more on the 75% of the part. I have personally applied this strategy. मेरा FR का एग्ज़ाम था जुलाई 21 अटैम्प्ट के अंदर ऑन 5th ऑफ जुलाई, एंड आई वॉज स्टडिंग टिल 2nd ऑफ जुलाई. टिल 2nd ऑफ जुलाई मैंने डेली 2 आवर्स तक ऑडिट का स्टडी किया है, एंड दैट रियली हेल्प मी आउट ऑन द एग्जामिनेशन डे ऑफ द ऑडिट, बिकॉज आई वॉज एबल टू रिमेंबर द थिंग्स विच आई हैव स्टडीड 7 to 8 days बिफोर ऑल्सो. सी, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने 20 दिनों तक उसको छुआ भी नहीं, इफ़ यू हैव नॉट touch the subject of audit within previous 20 days, then you will feel like you are lost in the subject. कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ properly याद नहीं आ रहा है. You will be able to recall only 40 to 50% कंटेंट ऑफ वॉट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली. सो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रेगुलर रिविजन्स चाहिए, जिसको आप फॉर नॉट मोर देन 5 to 6 days आप इससे दूर रह सकते हो. आई वुड से इस सब्जेक्ट से जितना आप कनेक्टेड रहोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सो इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FR एंड यू फील लाइक यार बहुत FR हो गया, मतलब आई एम सेइंग लाइक ऑन 2nd और 3rd ऑफ दिसंबर, जस्ट 2 days बिफोर द एग्जाम, एक टाइम आएगा कि यार 4 दिन से FR ही पढ़ रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है. फॉर 1 hour skip the subject and go to audit, learn any random topic, read any random topic, you will feel fresh, like FR का जो लोड था वो भी कम हो जाएगा, और ऑडिट का आपका एक छोटा सा कोई टॉपिक या कोई चैप्टर है वो भी आपका कवर हो जाएगा. मैंने पर्सनली ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है, मुझे ऑडिट में काफ़ी हेल्पफुल ये स्ट्रेटेजी रही थी. और अभी आप लोगों को प्रिपरेशंस किस तरह से करना है, फोकस ऑन हेड पॉइंट्स ओनली. कोई भी एक चैप्टर है, कोई भी एक टॉपिक है, उसके हेड पॉइंट्स पे आपको एक्सट्रीम फोकस देना है. सेक्शन नंबर्स वगैरह याद रखने में अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड बाय रीडिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर और क्लॉज नंबर याद रखने में टाइम अभी नहीं बिगाड़ना है, बिकॉज यू आर लेफ्ट विथ too less time to do all these things. Okay, and one simple advice, complete full syllabus on the examination day, never leave a topic, and at least follow my slogan which I usually say is study easy topics from every chapter and leave the hard part from limited chapters. So समझ लीजिए कि बैंक ऑडिट एक बहुत ही लंबा चौड़ा रहा है चैप्टर, जो एवरी CA फाइनल स्टूडेंट है वो बोलता है कि बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, दे आर अराउंड 90 to 100 pages of the module, and their weightage is just 4 to 5 marks. So how to attempt them? Yes, एक टाइम के लिए मैंने भी सोचा था कि इन चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं क्योंकि इतना इनका वेटेज बहुत कम है और स्टडी बहुत कुछ करना है. बट ओवर द टाइम मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी कम्प्लीटली स्किप नहीं करना चाहिए. कुछ समरी नोट्स वगैरह किसी अच्छी फैकल्टीज़ की फाइंड कीजिए, कुछ समरी नोट्स पढ़िए, या फिर यूट्यूब पे किसी फैकल्टी के कुछ रिवीजन लेक्चर है जो सिर्फ 45 या 50 मिनट्स में आपको पूरा बैंक ऑडिट का एक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें करने से आपको एक ओवरऑल आइडिया रहेगा. यू नेवर नो, अ 1 mark MCQ कैन कम, एंड आपने जस्ट यूट्यूब पे कोई फैकल्टी की एक लाइन भी सुनी है और वही लाइन आपको MCQ में आ गई तो आपको यूज़फुल हो जाएगी. सो इन्वेस्टिंग 2 to 3 hours ऑन ईच ऑफ दिस
chapters like banking, PSU and insurance is not a bad deal, but investing more than that in this chapters like आपने पूरा एक दिन ही अगर बैंक को दे दिया, PSU को दे दिया, that is not advisable at all. These chapters are not worth giving too much time, but at the same time आप इन chapters को completely skip भी नहीं कर सकते. Okay, कमिंग टू एग्ज़ाम में कितना टाइम किस चीज़ को अलॉट करना है, कितने टाइम में अपने को MCQs कंप्लीट करना है, कितना टाइम सब्जेक्टिव को देना है. मेरा पर्सनली यही ओपिनियन रहा है कि MCQs को 45 to 50 मिनट्स देने चाहिए, बिकॉज जुलाई 21 में जो एग्ज़ाम दिया था उस पे से मेरा इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि जुलाई 21 अटैम्प्ट के बाद जो अटैम्प्ट आएंगे वहाँ पे MCQ का लेवल बढ़ रहा है. केस स्टडीज़ जो आ रही है वो एक लेवल अप आ रही है. आप समझ सकते हो अबव एवरेज MCQs पूछ रहे हैं और इतने माइन्यूट लेवल पे पूछ रहे हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी माइन्यूट गलती कर ली देन इट विल कॉस्ट यू 1 to 2 मार्क्स. मतलब ऐसा है कि 30 सेकंड्स में रीड करके डायरेक्टली उसका आंसर लिख देना दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ पेपर, क्योंकि बहुत कुछ लिंक करके पूछ रहे हैं. एंड आई बिलीव द आइडियल टाइम इज़ 45 to 50 मिनट्स. और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि थियोरी सब्जेक्ट्स में MCQ इज़ द ओनली पोर्शन इन विच यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हाँ ये सही है या गलत है. सब्जेक्टिव में आप कितना भी सही लिखो, यू नेवर नो द पेपर चेकर विल गिव यू 0 मार्क्स, 1 मार्क्स और 4 मार्क्स. यू आर नेवर श्योर अबाउट दैट. बट हाँ, सब्जेक्टिव में अगर आपको पता है कि ए ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन सही है. पर्सनली मेरे ऑडिट के अंदर MCQ में 19 मार्क्स है आउट ऑफ 30 एंड सब्जेक्टिव में इट्स ओनली 22 मार्क्स आउट ऑफ 70. सो यू कैन बिलीव अगर मैं ऑडिट में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो मैं फेल हो सकता था ऑडिट में. ठीक है. सो MCQ is the only portion in theory subjects where you can be rest assured. So I believe it's worth to give more time to MCQs. Although people say that 30 to 35 minutes is more than enough, I don't believe in that. I believe 45 to 50 minutes because हो सकता है 30 मिनट्स में भी हो सकता है, बट देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक माइनर मिस्टेक्स विच विल कॉस्ट यू 4 to 5 मार्क्स इन ऑडिट. एंड आई डोंट बिलीव कि अपने को MCQs के अंदर कोई भी मिस्टेक करनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव वैसे भी अपने हाथ में नहीं है, पेपर चेकर और सब उनके हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है. तो MCQs इज़ द ओनली पोर्शन वेर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड टू पास. सो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द MCQs. गिव सफिशिएंट टाइम even if you are taking 1 hour, but if you are taking assurance that I will be able to score 20 to 22 marks, I would say give 1 hour and be assured of scoring 22 marks. because सब्जेक्टिव में वैसे भी कुछ भी लिखो अपने हाथ में कुछ खास रहता नहीं है. ये मैंने जुलाई एग्ज़ाम की मेरी सर्टिफाइड कॉपी देख के ये एनालिसिस किया है. So for solving 70 marks subjective, I believe 2 hours and 10 minutes is enough if you plan properly, if you write properly, if you understand the question and write properly. It's not that much lengthy कि आपको 2.5 hours लगेंगे. Okay, so 2 hours and 10 minutes is the ideal time I believe for the subjective, and 45 to 50 minutes is the ideal time for solving the MCQs. So this is it. ये actually 1.5 ऑडिट प्लानर से कुछ ज़्यादा है, एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है. सो आपको आज के दिन से लेके एग्ज़ाम डे तक और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम किस तरह से देनी है उसकी एक प्रॉपर एडवाइस है. मैं और भी कई वीडियोस बनाऊंगा स्पेसिफिकली ऑडिट के ऊपर, किस तरह से आपको पेपर लिखना है, किस तरह से. इवन आई वुड बी शेयरिंग माय सर्टिफाइड कॉपी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोर इनसाइट्स. जस्ट एक क्विक रिव्यू कर लेना, उससे आपको प्रेजेंटेशन वगैरह भी समझ आएगा. And I hope this video is helpful to you. For any other doubts or queries, you can ask me in the comment section. I am always ready to help you out. And if you need any personal advice from me, then I will be sharing my contact number here also. You can connect with me on WhatsApp also. Thank you guys. Signing off. CA Kaushal Jagetia.